All right. I'm going to just request everyone to please take your seats. Gentlemen, let's all settle down, please. Right. Firstly, a loud hand to everyone in the audience for being so patient and waiting, because I know time is precious, just like everything around us in this room and around. Let's come to the point. We are for coffee with Dr. Chetan Kumar Mehta, and of course, an amazing conversation with Mr. Dinesh Lakhani, the Global Director for Kiran Gems Limited. Ladies and gentlemen, if you wonder the time that's taken, let's look at it in a positive way. The hot coffee is now cold coffee, raising the standards to the gentleman who's pretty cool, who's in this conversation. Am I right, Chetan Bhai? Absolutely. When I was discussing about handing it over to him and giving an introduction, I realized there's so much to say about him. I would absolutely do no justice to putting together everything that he has achieved in a lifetime. But it is wonderful to know that his upbringing is precious, because he's been very fond of his grandmother and she's put the best into him. That's exactly why he gave her name to his company, and we know it's known as Lakshmi Diamonds. He put his best efforts in making sure he educated himself. Right from getting the best of education for himself, he thought he could give it back to society, and hence we know of all the efforts he has put into the field of education. And finally, I'd like to come right down to the fact that he has been supporting so many organizations and putting his efforts to make sure that everything is best in this industry, especially in the South. So hence, we'd like to congratulate him for being India Bullion and Jewelers Association, that's IBZA, and Jewelers Association Bangalore, that's JAB. He's the president for both these places. He also is the chairman for the Silver Show of India and the chairman of exhibitions. Ladies and gentlemen, a round of applause for the gentleman himself, who shines like one of his diamonds. Of course, Dr. Chetan Kumar Mehta, everybody. So I'm going to ask you to take this space quickly, and I'm going to hand over to you, because you would do justice to introducing the gentleman who is here to share his insight and have this conversation with you. So over to you, Dr. Mehta. Hello. Good evening, everyone. I think the energy what I look is, good evening, everyone. Good evening. Yeah, I would request everyone, whoever standing outside, don't miss this opportunity, hearing out the best man in our country. I would request everyone who are standing out to please to be seated and close the door, because today we are going to see a lot of things, hear a lot of best things about the diamonds, why diamonds is so beautiful. Diamonds is, the beautiful, it's a great friend for the all women in the world. Diamonds is about everything in the life. So it's very proud moment for me today, because the man who I'm talking about is himself a big institution in himself, because he have started from the scratch. He know everything about the life, about the diamonds, and proud to say that he is one of the world's biggest cut and polish manufacturer of our India. That is the world. So I think India is proud of you. And I think we don't need his introduction. I know when we tell his name, can you just tell what his name? What is that? Dinesh Lakhani. Come on, a big round of applause for Dinesh Bhai Lakhani, Global Director, Kiran Gems. It's a very fortunate day for all of us, because people have a lot of things to understand. What is diamond about, how we manufacture, what is the size of our market, how India is dealing with the natural diamonds, and what all challenges we are facing from the industry, and how to uplift this industry. I think no one can better tell us about that. I would request Dinesh Bhai Lakhani to please join on stage on the special program in conversation with Dinesh Lakhani. Thank you, Dinesh Bhai. I would request you to please join on stage. Yes, Dinesh Bhai. Good evening.
I think sometimes you don't require the mic because your voice is like a Amitabh Bachchan of our industry. Dinesh bhai, firstly, I would thank you for sparing time, and I'm sorry we are running little late because of the event is back to back. But I'm very fortunate that a great friend, guide, mentor, you're with me, with everyone, helping this industry. दिनेश भाई, आई थिंक आपने अपनी जर्नी बहुत कम उम्र में चालू की है, जब तक हम समझ रहे हैं. कृपया हमें अपने बचपन, परिवार, बड़े होने के वर्षों, शिक्षावदों के बारे में कुछ बताएं कि प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, फैमिली, ग्रोइंग अप ईयर्स एंड एकेडमिक्स. आपको उसके बारे में कुछ जानना है कि आपका बचपन एक्चुअली कैसे बीता है और आपने अपना बचपन कैसे गुजारा है, वो जर्नी वहाँ से यहाँ तक आपकी कैसी रही है, हम ये सुनना चाहते हैं आपसे दिनेश भाई. थैंक यू चेतन भाई. पहले तो इतना बड़े प्लेटफॉर्म में आपने मेरे को मौका दिया. चेतन भाई हमेशा मेरी तारीफ करते रहते, लेकिन मैं इतने तारीफ लायक आदमी नहीं हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड है और इंडिया का एक प्रेस्टिजियस शो IIJS, उसमें मेरे को डॉक्टर चेतन के साथ कॉफ़ी का और एक कन्वर्जेशन का मौका मिला, वो मेरे लिए अहोभाग्य है. थैंक यू चेतन भाई अगेन. अभी मेरी लाइफ की मैं बात करूं तो एक छोटा बच्चा यानी 17 साल की उम्र, मेरा स्टडी 12 तक ही हुआ, लेकिन मेरे सर्कल थे वो पूरा बिजनेस में चले गए और मैं अकेला बच गया. तो मैंने मेरे फादर को बोला कि अभी 12 कंप्लीट करके अभी मेरे को स्टडी नहीं करने का है. इवन मैं 12 साइंस का फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में सबसे पीछे था, लेकिन जो सराउंड मेरा सर्कल था वो बिजनेस में जाने लगे, तो मेरे को ऐसा हुआ कि मैं पीछे रह जाऊंगा बिजनेस में. लोगों ने कमाई चालू कर दी है, तो मैं क्यों अपने पापा का पैसा यूज़ करूं, मेरे को कुछ करना चाहिए. तो 12वीं कक्षा ख़त्म करके मैंने डायमंड इंडस्ट्री ज्वाइन किया. मेरा फादर का भी बिजनेस डायमंड ही था, वो भी फैक्ट्री चलाते थे. लेकिन सराउंड वातावरण ने मेरे को इतना मजबूर किया कि मैं अकेला रह गया. इसके लिए मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने का एक इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन किधर से स्टार्ट करूं समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 17 साल की उम्र, आज से कितना सालों पहले, मतलब मैं 1995 में मेरा 12 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, वो टाइम की बात कर रहा हूँ. आज का एजुकेशन लेवल तो बहुत आगे है. आज के जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, उसको जो एजुकेशन दिया जाता है उसके कंपेयर में वो लेवल में वो सर्विसेज, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी. वो नई टाइप और सब फैमिली वो टाइप का सर्विसेज दे भी नहीं पाते थे, क्योंकि वो लेवल का फाइनेंशियली पोजीशन सबके पास नहीं होता था. आज तो बहुत हम लोग लकी है, इंडिया भी इतना ग्रोथ कर रहा है और आज एजुकेशन के ऊपर इतना अवेयरनेस हो गया. तो वो टाइम की अगर मैं बात करूं तो मैंने ठान लिया था कि मेरे को एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है. अच्छा बिजनेसमैन तो बनना ही है, लेकिन एक फैमिली का एक रिक्वायरमेंट भी था. बड़ा बनने का है ना, तो उसके साथ खाली पैसे से बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है. पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं रहता है. अच्छा बनने का, बड़ा बनने का है, लेकिन देश के लिए भी कुछ करो और बिजनेस ऐसा करो जो बिजनेस में आप इंडिया को कोई एम्प्लॉयमेंट या रोजगारी खड़ी कर सको. ऐसा बिजनेस करो जिस वजह से आपका नाम भी होवे और बिजनेस भी बड़ा होवे. वो हिसाब से मैंने एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की तो ट्राई की, लेकिन नेशन को कैसे हम लोग हेल्प कर पावे और नेशन के लिए क्या कर पावे, वो वजह से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग चूज़ किया. उसके बाद धीरे धीरे मैंने पूरा ट्रेनिंग लिया. ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने डायमंड सेल्स कैसे होता है, मैं खुद फैक्ट्री में बैठ के
डायमंड कटिंग कैसे होता है, डायमंड एसोमेंट कैसे होता है, और उसके बाद डायमंड सेल कैसे होता है, वो सब ट्रेनिंग ली। लेकिन एक जुनून था, करने का है तो कुछ बड़ा ही करने का है, रुकने का नहीं है। हार्ड वर्क कितना भी करना पड़े वो करने के लिए मैं रेडी था। उसके लिए मैंने वो टाइम की बात करूं तो मैंने जब ये आज की बात करूं तो मोदी साहब जो छुट्टी नहीं लेते थे ना, मैंने वो टाइम पे भी एक दिन छुट्टी नहीं लेता था। वो टाइम मेरे का सुबह का मेरा वो ऑफिस में 8 o'clock में हाजिर हो जाता था, और शाम को फिक्स टाइम नहीं था, 11 भी बज सकता था, 10 भी बज सकता था, 12 भी हो सकता था। काम खत्म होने के बाद ही मेरे को घर जाना है, ये मेरा एक संकल्प था। और जो मेरा पॉलिसीज था कि मैं हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन और विज़न, फोकस के साथ मेरा गोल फिक्स था कि मेरे को क्या करने का था। लेकिन मैं बोलता नहीं था, मैं करता रहता था। गाँव कुछ भी बोले मैं उसके ऊपर नहीं लगता था, मैं मेरे काम पे ऊपर फोकस करता था। और फोकस की वजह से आज जो हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को तो 100% सेटिस्फाइड हुई। उसके साथ जब भी मैं सोचता हूँ कि सराउंड जो आपके सर्कल है उसमें योगदान बहुत बड़ा रहता है, हम लोग उसको माने या नहीं माने। लेकिन आदमी को सराउंड जो आपके फ्रेंड सर्कल है, अगर डेडिकेशन वाले मेहनत करने वाले रहेंगे तो आप भी दौड़ने वाले हो जाएंगे। तो आज मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इंटरेस्ट के साथ, एन्जॉयमेंट के साथ कर रहा हूँ। दिनेश भाई, आपकी जब आवाज़ सुनते हैं उससे ही हमें पता चलता है कि आपका कितना इंस्पिरेशन है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिनेश भाई। आप जब भी उनसे बात करेंगे तो यही उनकी आवाज़ में वो एक बोलते हैं ना कि जब आपकी आवाज़ से पता चलता है कि आपके अंदर की सुंदरता क्या है। उससे दिनेश भाई आपने बहुत कुछ हमें बताया इस चीज़ में। लेकिन एक होता है ना, एक बचपन होता है। आप बोल रहे थे मुझे बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है। तो जब आप बिजनेस में आए तो आपका टर्नओवर क्या था? और अब आप बता रहे हैं कि हम बचपन में आपने ना दिन देखा ना रात देखा, आप हमेशा काम करते थे, और चाहे कोई कुछ भी बोले आपको सिर्फ कुछ करना था। और वहाँ से लेकर आज आप दुनिया के सबसे बड़े एक मैन्युफैक्चरर बने हैं। वो हमारे देश के लिए भी गर्व है, हमारी फेटर्निटी के लिए भी गर्व है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका उस टाइम पे टर्नओवर क्या था और अभी का टर्नओवर क्या है? चेतन भाई, किरण जेम्स की स्थापना 1985 में वल्लभ भाई ने, बड़े भाई ने की थी। तभी का एक माहौल बात करूँ तो एक वो लेवल का प्रोफेशनलिज्म नहीं था। छोटा सा हम लोग काम कर रहे थे भावनगर से, एक स्मॉल सिटी है गुजरात का, उसमें भावनगर से काम कर रहे थे। और हमारा ओरिजिनली काम था ट्रेडिंग का। और ट्रेडिंग के बाद धीरे धीरे वल्लभ भाई को ऐसा लगा वो भी एक अलग व्यक्तित्व है, बहुत हार्ड वर्कर और विजनरी पुरुष है। उसने तय किया है कि भाई ट्रेडिंग से एक सर्टन लिमिट आ जाएगी और एक सर्टन लेवल से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसको वो वजह से एक मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने सेट किया कि अगर आगे बढ़ना है, बड़ा काम करना है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ये कर सकते हैं। ट्रेडिंग में फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन ट्रेडिंग में आप ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसके बाद एक सर्टन लिमिट आ जाती है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग चीज़ ऐसी है जो प्रोसेस में नंबर ऑफ यूनिट लगाना पड़ता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट लगाना पड़ता है। तो उसमें ईच एंड एवरी स्टेज पे आपको एम्प्लॉयमेंट की हाईली ज़रूरत रहती है और स्किल वाली ज़रूरत रहती है। तो जो इंडिया को हम लोग स्किल की वजह से, एम्प्लॉयमेंट देने की वजह से कैसा सपोर्ट कर पावे, वो हिसाब से हम लोगों ने चालू किया था। तभी हमारा टर्नओवर साल का शायद 10 से, याद एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन 15 से 20 करोड़ मैक्स हो सकता था। आज वो टर्नओवर हम लोग 17,000 करोड़ कर चुके हैं और मोर देन 50,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग एम्प्लॉयमेंट देश को दे रहे हैं। दिनेश भाई, ये बस यही मैं जानना चाहता था कि 10-15 करोड़ की जर्नी, 17,000 करोड़ की कंपनी, एक हर व्यक्ति का एक, जब आपका बचपन बीता तो सबको लगता है खेलना है, कूदना है, और आप खेलने कूदने की उम्र में आपने काम को ज्वाइन किया। एक बचपन से हर आदमी का एक ड्रीम होता है। आपने बोला मुझे बड़ा बनना है,
मैं आपकी बड़े बनने की परिभाषा जानना चाहता हूँ। बड़ा बनना क्या आपका मतलब पैसा कमाना था, नाम कमाना था? हाँ, ऐसा कहा जब भी हम आपसे बात करते तो हमें पता चलता है आपका देश प्रेम बहुत है, लेकिन आपका ड्रीम क्या था बचपन में? क्योंकि आप बोल रहे थे कि मध्यस्थ परिवार से थे और एडजस्टमेंट और वैसे जॉइंट फैमिली, काठियावाड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ड्रीम क्या था? बड़ा बोले तो आपने कभी सोचा था कि मैं इतना बड़ा बनूंगा? देखो, कभी भी मैं तो मेरा तो बात करूंगा ही, लेकिन मेरे साथ आपको भी साथ में लेके चलूंगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जो सूत्र मोदी साहब चला रहे, वो जब भी मैं छोटा था तभी मैं जो काम करता था वो मेरे जो सर्कल वाले को आप पूछ सकते हो, सबको साथ में लेके चलता था। तो वही वजह से हम लोग बैठ के एक कभी भी कोई लाइफ में कुछ भी करने का, बिजनेस हो या घूमने हॉलीडेज लेने का है या स्कूल में कुछ इवेंट करने का है, तभी मैं स्कूल में भी थोड़ा अग्रेसिव चलता था। जब भी मैं स्कूल की टाइम की बात करूँ तो आपकी लीडर क्वालिटी पहले से आपकी लीडर क्वालिटी है? लीडर क्वालिटी तो नहीं थी मेरे में, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा सर्कल वाले बोलते थे कि तू स्कूल में तेरे में क्या है, समझ में नहीं आता था, तू करता है वो टीचर मान लेता है और हम करते हैं वो टीचर बोलता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो मैं उसको बोलता था कि एक समझाने का तरीका है, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं उसको बोलता था कि हम लोग साथ में चलेंगे और लंबा देखेंगे, बड़ा विजन देखेंगे। हो सकता है या नहीं हो सकता है वो मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन आदमी से आदमी को एक ही प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कभी भी लाइफ में गोल सेट करो या कुछ भी करो या आपको कुछ लाइफ में करने का है, हमेशा बड़ा देखो। तो बड़ा देखने की भावना से मैंने 17,000 करोड़ माइंड में नहीं रखा था, लेकिन मैं बड़ा बनूंगा वो मेरा गोल था, विजन था और बन के रहूंगा, यह मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस था। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए दिनेश भाई के लिए। आप उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस फूट फूट के अभी भी भरा है आपके अंदर। आपने बहुत अच्छा कहा कि सबको साथ लेके चलते हैं आप, और आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपका समझाने का तरीका। मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी बार होता है कि वो समझाए तो नहीं समझते, हम समझाए तो समझ जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपका कन्वे करने का जो मेथड है वो बेटर होना चाहिए और पॉलिश्ड वे से और होना चाहिए। दिनेश भाई, ये आपकी ये जो अंदर की छोटी छोटी क्वालिटी बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये अभी हमें पता चल रही है। अब दिनेश भाई, हम ये चीज़ सब जानना चाहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आपने भी बहुत आपकी उम्र में उतार भी देखा है, चढ़ाव भी देखे हैं, स्पर्श स्पर्श सब देखा है आपने। ऐसा कोई इंसिडेंट जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, आपको लगा कि ये इंसिडेंट ने मुझे और ऊपर किया है और बड़ा बनाया है और ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में? कोई इंसिडेंट आपको याद है? नाम नहीं आप लोगे तो चलेगा, लेकिन वो इंसिडेंट हम जानना चाहते हैं जिसने आपको प्रेरित किया है। अभी जैसे आप जैसे सबने बचपन देखा है, सबको पैसा कमाना है, सबको बड़ा आदमी बनना है, उसमें आप चुने गए भगवान के द्वारा, आपकी नीयत साफ थी, सबकी नीयत साफ है, लेकिन एक ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन होने के लिए ऐसा कोई इंसिडेंट घटित होता है या हमारे साथ ऐसी अनहोनी चीज़ होती है कि हमें लगता है कि हमें वो चीज़ को पाना है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट दिनेश भाई आपको याद है? देखो, लाइफ का नाम क्या है? पहले तो लाइफ का नाम है स्ट्रेट चले वो लाइफ नहीं होती है। तो लाइफ में इतना इंसिडेंट आया है और मैं तो सबको बोलता हूँ इंसिडेंट आना ही चाहिए, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। अगर लाइफ हो या बिजनेस हो, स्ट्रेट वे से चलता है ना तो आप कुछ भी आगे नहीं कर पाओगे लाइफ में कभी भी। मैं बिजनेस की बात करूँ या लाइफ की बात करूँ, मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और बिजनेस में तो बहुत आए हैं और मैं देखते भी रहा हूँ। और वहाँ तक आपको माइंड मतलब डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई अभी मेरे को कल से कुछ करने का ही नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों करना चाहिए। ये जो माइंड आपको अगर क्वेश्चन पूछने लग जाएगा और उसके पीछे आपके जो माइंड है वो पॉजिटिव रिप्लाई कुछ निकाले और उसके ऊपर आप लग जाए कि भाई इसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो उसकी वजह में आप जो बात कर रहा हूँ उसमें मेरी लाइफ में बहुत इंसिडेंट आए। एक इंसिडेंट दिनेश भाई हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि
आपसे सब बात करते हैं, आपने सब हमेशा बिजनेस की बात की है, हर आदमी को आपने प्रोत्साहन दिया, चाहे वो डायमंड हो, कोई भी हो, कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, हाथ मिलाते आप गले मिलते, वो सब ठीक है, आपका वो एक बड़प्पन है। लेकिन एक इंसिडेंट हम जानना चाहते हैं जो आपको ज़िंदगी में इंस्पायर किया कुछ करने के लिए। देखो, एक 1999 और 2000 में आपको मालूम होगा मिलेनियम ईयर चल रहा था इंडिया में। 99-2000 में बहुत अच्छा हुआ, काम भी बहुत अच्छा कर रहा था मैं, कमाई भी अच्छी हो रही थी और रुकने वाला ठानने वाला में से मैं नहीं था। लेकिन 2001 में जो क्राइसिस आई और क्राइसिस ने जो माइंड चेंज करने की बहुत ट्राई की। आपको मालूम होगा शायद जो इंडस्ट्री से जुड़े थे लोग कि सर्टन टाइम में कितना डाउनफॉल आ गया था पूरी इंडस्ट्री के लिए। और अभी मैं लोगों का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन नेगेटिविटी इतनी चल रही थी कि ये धंधा ख़त्म हो गया है, पत्थर हो गया है, नहीं करना चाहिए, जो बचा है वो लेके निकल जाओ, वहाँ तक हो गया था। और सेम इंस्टीट्यूशन ऐसा 2007 और 8 लेहमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस आया था, उसमें काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला था कि डायमंड इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, जो डायमंड है वो पत्थर हो जाएंगे। और मैंने हमेशा लाइफ में चैलेंज लिया है और जब भी चैलेंज मेरे को दिखता है मैं हमेशा वो चैलेंज को कैसे आगे लेके जाऊँ, मतलब उसमें से मैं क्या लेके चैलेंज को पॉजिटिव वे से लेके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊँ, वही देखा है। उसकी वजह से मैंने बहुत डिस्टर्ब हुआ था, मैं निकलने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन माइंड से कुछ अंदर से पॉजिटिविटी आ रही थी तो मैंने नहीं होने दिया और चैलेंज को अपॉर्चुनिटी जो है उसमें कन्वर्ट करके बिजनेस को आगे बढ़ाता ही गया। और उसके बाद पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में भी वैसा उतार चढ़ाव काफ़ी बार आया है, क्योंकि शायद इसमें इंडस्ट्री से जुड़े हुए उसको मालूम होगा, एक मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और जब ये हादसा हुआ उसके बाद मैं पूरा टूट गया था कि भाई अभी मेरे को कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक कोई मेरे को गुरुदेव मिले और उसने मेरे को महाभारत का एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया। उसके बाद वो एग्जाम्पल बहुत लंबा है, मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फाइनल कंक्लूजन में वही बात करना चाहता हूँ कि उसके बाद मेरे को कुछ माइंड में प्रेरणा चेंज हुई कि लाइफ है, लाइफ कभी स्ट्रेट चलती नहीं है, बिजनेस है, बिजनेस कभी स्ट्रेट नहीं चलता है, वही बिजनेस और वही लाइफ बोला जाता है। उसके बाद मैंने अगेन ठान के मेरा जो रूटीन वर्क था, जो हार्ड वर्किंग वाला विजनरी और गोल से मैंने चालू रखा वो काम को। दिनेश भाई, ये पता है काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स भी होते हैं ज़िंदगी के, और जैसे आपने कहा 2001, 2007, 2008 एक बहुत बड़ा पूरी इंडस्ट्री के लिए ख़तरनाक था और काफ़ी लोगों ने बिज़नेस भी छोड़ दिया, बेचा हुआ सब रख लिया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी वो स्ट्रगल टाइम में, आप डटे रहे, खड़े रहे। कहीं ना कहीं आपकी मन की आवाज़ कह रही थी कि मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अपना विल पावर जो होता है ना, वो हमारे साथ ज़्यादा काम करता है, कि जब हमारा दृढ़ निश्चय हमको हर जगह पहुंचा सकता है। और जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं भगवान का आपको हर जगह आशीर्वाद रहा है। मुझे लगता है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। उसका कारण है कि 50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय के परिवार जिस कंपनी पे टिके हुए हैं उसको भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई आपका। एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिनेश भाई। आई थिंक ही स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर व्हेन वी लिसन टू हिम। दिनेश भाई, ये भी एक जानना चाहते हैं हम लोग कि जब आपके अर्ली डेज थे, पहले जब, अभी तो आप अभी $1 बिलियन कंपनी एम्पायर को संभाल रहे हैं, जब अर्ली डेज थे तो कभी आपने सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी का टर्नओवर होगा और मैं यहाँ बैठूँगा और इस इंडस्ट्री पे मैं राज करूँगा? जब आप वो दिन और ये दिन देखते हैं, क्या बदलाव नहीं आया आपके अंदर
और आपने क्या बदलाव किया? हमारे बड़े भाई है जो वल्लभ भाई, उसको मैं बोलता रहता था कि मेरे को ये करने का है, मेरे को वो करने का है, लेकिन वो हमारे से बहुत स्मार्ट है। वो इतना बात करते थे, तू बोल मत। बोला क्यों, मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, कोई पब्लिकली बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या जो बोलता है ना वो करता नहीं है, और करता है ना वो आज मेरे से बात नहीं करेगा, वो करके दिखाएगा। तो तभी से मैंने ठान लिया था कि अभी मैं कभी भी उसको ये नहीं बोलूँगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और कंपनी को कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। वो बोलता करके दिखाओ, करने की बात तुम कर रहे हो, बात मत करो, करने के बाद प्रूव कर लो कि आप करते हो। वही विजन से, वही थॉट प्रोसेस से मैंने कभी पीछे नहीं देखा है, और पीछे देखने की बात आती है तो मैं खड़ा नहीं रहता हूँ, उसे से निकल जाता हूँ। और जितना भी आगे भी मैंने आपको मेंशन किया कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो, ये तो बिजनेस की बात हो रही है, नेगेटिविटी आपके सराउंड जो घूमने लगी तो आप समझ लो फेल होने वाले हो। उधर से निकल जाओ, कुछ ना कुछ बहाना बना के वो सर्कल से आपको बाहर निकलना जरूरी है। तो इसलिए मैं मेरी लाइफ में जिधर नेगेटिविटी है वो घुसने नहीं देता हूँ, उधर से मैं खुद निकल जाऊँ वो मैं ट्राई करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। काफ़ी बार क्या होता है कि हम कुछ नेगेटिव लोगों से साथ में रहते तो हम कुछ करना भी चाहते तो वो हमें बताते हैं ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। छोटी सी घटना है, जब मैं हीरे इंडस्ट्री में आया तो बोला ये आपके बस का रोग नहीं है, और जब किसी ने बोला ये बस का रोग नहीं है तो वैसे ही हमारा मनोबल टूट जाता है। लेकिन किसी ने, मेरी दादी माँ ने कहा कि जब 100 दरवाजे बंद होते हैं तो और 1000 दरवाजे खुलते हैं। तो हमें हमारी सोच को दृढ़ रखना है। दिनेश भाई का जो विल पावर है, इससे हमें पता चलता है कि उनका दृढ़ निश्चय ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांग रहा है। और एक सीखने की बात बहुत बढ़िया है कि जब नेगेटिव लोगों से आप घिरे हुए रहोगे आप कभी आगे नहीं जा सकते हो, बिकॉज वो ना खुद आगे जाएंगे ना किसी को आने देंगे। ये उनका एक जीवन का एक उनकी एक ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ नेगेटिविटी की बात होती है मैं वहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ, बिकॉज वो मेरे लिए नहीं बनी है, मैं और किसी चीज़ के लिए बना हूँ। बहुत अच्छा दिनेश भाई, सबका जीवन में ना कोई ना एक गुरु होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इंस्पायर करता है। जैसे मेरे जीवन में मेरी दादी माँ ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, और सही माने अगर वो नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ रहता। तो मैं ये जानना चाहते हैं हम लोग, दिनेश भाई, आपके जीवन में एक इंस्पिरेशन व्यक्ति जो आपको लगता है कि उन्होंने हर जगह से आपको साथ दिया है। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार पैसा होता है, करने की ताकत नहीं होती है, करने की ताकत होती है, पैसा नहीं होता है। तो एक मॉरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। तो दिनेश भाई, हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो गुरु कौन है? देखो, मैं थोड़ा इधर एक अलग सोच वाला आदमी हूँ। मेरे गुरु ऐसे देखो तो मेरे बड़े भाई वल्लभ भाई है, लेकिन उसका जो थॉट प्रोसेस से लेके जो मेरे में जो कॉन्फिडेंस और हिम्मत भरी है बिकॉज ऑफ हिम। सेकेंड थिंग, मैं उधर आपको थोड़ा चेंज भी दिखाता हूँ। मेरा गुरु मेरा एक छोटा सा प्यून भी हो सकता है, और मेरा गुरु धीरू भाई अंबानी भी हो सकते हैं, मोदी साहब भी हो सकते हैं। मैं जिधर भी जाता हूँ उधर कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ, और मेरे लिए ईच एंड एवरी डे इज न्यू लर्निंग डे फॉर मी। तो चेतन भाई, आप भी मेरे गुरु हैं। तो काफ़ी चीज़ कोई भी हो, मेरे पास अगर टाइम रहता तो मैं आपके पास बहुत उसके बारे में शेयर करता था। कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कोई बड़ा इश्यू आ गया था, उसका सॉल्व मतलब इंजीनियर से लेके कोई नहीं कर पाया, टॉप मैनेजमेंट नहीं कर पाया, और वेल फेमस वो एग्जाम्पल है, सबको मालूम ही होगा। वो सॉल्व सिक्योरिटी ने किया है। मतलब जो आदमी पूरा फैक्ट्री का एक वॉचमैन था, उसने वो सॉल्व इजी 1 सेकंड में करके दिया। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब वो है कि मेरे गुरु सबको ही है, आप भी हो। और मैं तो
जिधर भी जाता हूँ उधर कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, क्योंकि मैंने एक ठान लिया है कि जब मेरे को ऐसा लग जाएगा कि आज मैं सर्वस्व और मेरे नॉलेज में पूरा संपूर्ण हो गया हूँ, तभी मेरा वो आखिरी दिन होगा। क्या बात। तो मेरे लिए गुरु की परिभाषा बहुत अलग है। मैं सबको गुरु बनाता हूँ, मैं खुद शिष्य बन जाता हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये जब हम कहते हैं ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं, दिनेश भाई के साथ मेरा थॉट प्रोसेस मेरी दादी माँ गुरु, लेकिन उन्होंने आज एक एग्जाम्पल और सही कर दिया कि हर व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जब एक बड़ी कंपनी का प्यून ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो दिनेश भाई ये जो आपकी सोच है ना, ये सोच को हम सबका सलाम है। जोरदार तालियां होनी चाहिए दिनेश भाई को। और मुझे लगता है आज इस जीवन में हमको ये धारणा भी चाहिए कि हमारे गुरु सब है, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हम कुछ सीखते हैं और जीवन में उतारते हैं और उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। दिनेश भाई, ये आपको बहुत वर्क अल्कोहलिक कहा जाता है। आपको हमेशा मैंने देखा है, वैसे तो काफ़ी बार मिल चुका हूँ, आपको काम करने का बहुत ज़्यादा पैशन है। उसमें ना कोई वक्त है, ना थकान है, ना भूख है। अब तो फिर भी थोड़ा सा आप ढल गए, बिकॉज अब आप समझ रहे हैं ठीक है अब मैं थोड़ा ब्रेक ले सकता हूँ। टीम बड़ी हो गई, बहुत सारे कर्मचारी हैं अपने पास। ये वर्क अल्कोहलिक है, आप इसका आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज 5:30 बजे आप उठ जाते हैं, 9 बजे 10 बजे आपका कोट आ जाता है एओजे में हमारा, और बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स के साथ आपके पर्सनल कोट आते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं हैं। तो हम सब जानना चाहते हैं कि आपका एक्चुअली दिनचर्या क्या है, और ये आपको नशा कैसे, और आप संभालते कैसे इस नशे को? बिकॉज एक बार आदमी को नशे की आदत पड़ जाती है, फिर बड़ा टफ होता है, चाहे कोई भी नशा हो, वो आप जानते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप इसको मैनेज कैसे करते हो और आपकी पूरे दिन की दिनचर्या क्या है? चेतन भाई, उसमें मेरा लाइफ फंडा एकदम सिंपल है। 8+8+8 मैं काम कर रहा हूँ। मैं जिधर जो आज आपके साथ बैठा हूँ अभी, तो 100% आपका हूँ, मतलब वर्कोलिक हूँ। 8 आवर्स मैं प्रॉपरली स्लीप कर रहा हूँ, 8 आवर्स मैं सोशल और फैमिली को दे रहा हूँ, और मिनिमम 8 आवर्स बिजनेस को दे रहा हूँ। तो बिजनेस में जब भी हूँ तभी किसी का नहीं हूँ, तभी सोशल का भी नहीं हूँ। सोशल में हूँ तभी बिजनेस का नहीं हूँ, तभी फैमिली और सोशल में ही हूँ। सो रहा हूँ तो मैं 100% मैं मेरे खुद को दे रहा हूँ। तो वो जो हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा जो एनर्जी है और प्रॉपर वे से बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ, रूटीन दिनचर्या की बात करें तो मैं 5:30 सुबह में उठ के समझ लो प्रॉपर मेरा रूटीन हो जाता है। और रही बात आपने वो जो ग्रुप की जो की, उसमें से मेरे को जो पर्सनली मैसेज आता है ना, वो आपको नहीं दिखता है, क्योंकि मैं काफ़ी ग्रुप मोर देन आई थिंक सो 10,000 लोगों को 1-to-1 मेरा मैसेज जा रहा है। और आप चेक कर लेना, वो कोई से कॉपी नहीं किया हुआ है। मैं लाइफ में आज अभी बैठा हूँ और मेरा माइंड आपके साथ जो चल रहा है, और मैंने जैसे आपको बोला कि आप भी मेरे गुरु हो, तो मीन्स आपसे मैं जो आप मेरे को जो क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से मेरे माइंड में कुछ बन गया है ऑलरेडी। वो मैं जो आज पूरे दिन में जो 1-to-1 बात कर रहा हूँ, वो मेरे माइंड में किधर लिखी जा रही है, उसको मैं रफ लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज में मैं उसको फ्रेम कर लेता हूँ। फिर वही जो चीज़ मेरी टीम को दे देता हूँ, उसके ऊपर वो पूरा रिफ्रेमिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करके मेरे को दे देते हैं। और ऐसा मेरा आई थिंक सो अभी मोर देन 3 मंथ या 4 मंथ का स्टोरेज है। अगर आज मैं बंद कर दूँ तो 3-4 महीना आपको मैसेज मॉर्निंग आते ही रहेंगे, और किधर से कॉपी किया हुआ आपको नहीं आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ का जो हम लोग डेली कुछ नया सीख रहे हैं, उसमें से वो मैसेज आके आपके पास पहुंच जाता है। रही बात फ़ोटो की, फ़ोटो में मैं आप इधर ड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। मैं बिज़नेस में भी किधर जाता हूँ तो बिज़नेस आवर्स के बाद जिधर मेरे को लगता है
कि जो मेरे दिल में रहने वाले लोग हैं, जो सुबह में मेरा मैसेज पढ़ते हैं, आज मैं जिधर जा रहा हूँ, मैं इसे आगे आपको एक मेंशन किया कि सबको साथ में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं जिधर जा रहा हूँ वो सबको आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इधर गया था। इसके लिए वो दिखाने के लिए मैं मेरा फोटो भेज रहा हूँ, नहीं कि मेरा प्रोफाइल बेटर करने के लिए। तो ये हिसाब से मैं सुबह में 8:30 को, समझ लो 5:30 को जाग के फिर थोड़ा एक्सरसाइज, और सुबह का ब्रेकफास्ट, और वो जो मैसेज आता है वो ब्रेकफास्ट टेबल से निकलता है। यस। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। 8:30 या 8 शार्प मैं ऑफिस पहुँच जाता हूँ। और काम है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ मैं काम कर रहा हूँ। और जो एम्पायर हुआ है, मैं आपको और क्लियर आगे नहीं भूल गया, मैं अभी बोल देता हूँ। एम्पायर के पीछे मैं अकेला नहीं हूँ, एम्पायर के पीछे पूरी किरण फैमिली है। यस। जो 50,000 लोग हमारे से जुड़े हैं। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं बोलने वाला आदमी हूँ। जो एक्चुअली एफर्ट है, जो मेहनत है, डेडिकेशन है, वो बिकॉज ऑफ हिम, ये 50,000 आदमी की वजह से मैं इधर बैठ पाया हूँ और आप सुन रहे हैं। बाकी जो अगर वो नहीं रहते तो मैं कुछ नहीं रहता, आप मेरे को बुलाते भी नहीं। तो उसके पूरा जो श्रेय है वो मेरी किरण फैमिली और लखानी फैमिली को जा रहा है। मैं तो उसके वती बात करने आया हूँ आपसे। क्या बात है, क्या बात है दिनेश भाई। ऑफिस जाके ऐसा नहीं होता है कि पूरा मेरा 8 आवर्स काम रहता है, लेकिन मैं एक एक आदमी का, मेरे एक छोटे से छोटा प्यून भी हो या टॉप मैनेजमेंट से हो आदमी, उसके साथ 1 to 1 क्या प्रॉब्लम बिजनेस की है और क्या करना चाहिए, वो लेवल से ईच एंड एवरी डे मैं फीडबैक लेके जो मेरे को लगता है, जो मेरे को आता है, वो मैं उसके से करवाता हूँ। करवाने के बाद वही सफलता वो लोग मेरे को दे रहे, और जो पूरा श्रेय है वो अगेन मेरी टीम को जाता है। उसके बाद शाम को 5:30-6 जब भी मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं अगेन घर पे जाके डिनर लेके जो अच्छे दोस्तों हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, उसके साथ कैसे कुछ नया सीखूं, वो मेरा कंटिन्यू मेरा आत्ममंथन चालू रहता है। और वो आत्ममंथन के सोच की वजह से आज मैं आपके साथ ये बोल रहा हूँ। और मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए इतना बोल सकता हूँ कि जो मेरा पावर है ना, वो मेरा ग्रुप है, और मेरा जो सराउंड वातावरण है वो मेरे को इतना इंस्पायर कर रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। तो उसके पूरा राज ये जो है मेरे सर्कल, ग्रुप और मेरे जो वेल विशर है वो सबको ही है। दिनेश भाई, जब हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आप इतना हमें सागर की तरह आपके उत्तर होते हैं, काफ़ी समझने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ हमने सबने नोट की होगी कि शुरू से लेकर अंत तक दिनेश भाई को जो सीखने की इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है। और जब तक आप शिष्य बने रहते हो, मुझे लगता है वो आप हमेशा और ज़्यादा ग्रो होते हो, क्योंकि दिनेश भाई जितने भी सवाल हुए, जवाब हुए, उसमें आपको सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। शाम को भी आप सीखना है, सुबह भी आपको सीखना है, इसीलिए आप गुरु है। आप 12वीं पास है, आप बता रहे हैं, मुझे कहीं से लग नहीं रहा है। हो सकता है आप हिंदी स्कूल में पढ़े हों, लेकिन ज़्यादा पढ़े हैं, 12वीं पास तो नहीं लग रहे, बिकॉज आपका दिमाग, आपका इंटेलिजेंस और हर चीज़ के पीछे लॉजिक है आपका, कहीं ना कहीं आप कैलकुलेटिव है। मुझे लगता है हीरे का भाव भी थोड़ा सस्ता आप कर दोगे हमारे लिए। श्योर। सही बोलूँ तो मैंने जो 12th तक नहीं पढ़ा है ना, उससे ज़्यादा, उससे मल्टीपल ज़्यादा मैंने इंडस्ट्री से पढ़ा है। क्या बात है। और ग्रुप से पढ़ा है और सीखा हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं अगर बात करूँ तो एज ए स्टूडेंट एजुकेशन में ओके फर्स्ट क्लास आता था, लेकिन मेरा टारगेट नहीं था कि मेरे को डॉक्टर बनने का है या इंजीनियर बनने का है। मेरे को एक अच्छा आदमी बनने का है, बड़ा बनना है। बड़ा बनना है। बड़ा बनना तो सबकी बात है, लेकिन बड़ा बन के मैं देश को कैसे, क्या बात है, उसका दे पाऊँ, वो मेरे माइंड में कंटिन्यू चालू था। वो वजह से मैं आज भी पढ़ते रहता हूँ और आज भी सीखते रहता हूँ। क्या होता है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिनेश भाई। दिनेश भाई एक मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे आते हैं। ये बहुत सब्जेक्ट मुझे पसंद भी, और ये देश के हित में
हमारे देश के परिवार के हित में बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे आपको पता है कि लखानी फैमिली एक मैसिव वेडिंग सब बहनों के लिए आप अरेंज किए 2022 में, और मुझे जब तक याद है ये मारुति फाउंडेशन की तरफ से सुरेश भाई और आपने लखानी परिवार ने किया है। थोड़ा उसके बारे में विस्तार से हम जानना चाहते हैं, बिकॉज आप जब देश की बात करते हो, आपका जो लगाव है बेटियों के प्रति, इतनी शादियाँ आपने कराई, और हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी साहब भी पधारे थे उस वेडिंग में। उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि 2024 में उसकी क्या रूपरेखा है। और इस बार मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारे इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी आप इस बार इनविटेशन दें, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि उसमें सहभागी होकर वो भी कुछ कितना काम कर सकते हैं। दिनेश भाई, ये बहुत अच्छी बात की चेतन भाई। कभी भी नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं तो पूरी इंडस्ट्री को इनवाइट करूंगा। थैंक यू। लेकिन एक मैं अभी आपका सवाल पे आता हूँ, उसमें एक मेरे से एक छोटा भाई है सुरेश, उसका एक इंडिविजुअल कंपनी है मारुति इम्पैक्ट्स, और वो एक फाउंडेशन चला रहा है, और मैं फाउंडेशन में मेंटोर हूँ। वो एक दिलावर आदमी है, मतलब जो भी मेरे से भी आगे, मतलब सोसाइटी से कमाया हुआ चीज़ सोसाइटी को कैसे वापस देना, वो बहुत अच्छी तरह से वो करता है। मैं भाई की तरह से मेरे को तारीफ नहीं करनी चाहिए ये प्लेटफॉर्म में, लेकिन ये आपने बात छेड़ी है तो उसकी बात मैं पर्सनली ज़्यादा नहीं करते हुए मैं आपको इतना समझाने की ट्राई करूँगा कि जो ये सोशल वर्क, वो जो सोसाइटी से कमाया वो सोसाइटी को वापस देना इंडस्ट्री कर रही है, काफ़ी लोग कर रहे हैं, और अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी फैमिलीज और काफ़ी कंपनी भी कर रही है, लेकिन इनका सबका रास्ता अलग अलग है, एम सबका एक है। उसने ऐसा चॉइस किया ये रास्ता कि मतलब फादरलेस गर्ल्स, जिसके फादर नहीं है, जिसके लाइफ के अरमान पूरे नहीं हुए, और उसको वो जो गर्ल्स उसका सपना अधूरा है, उतना इमोशन उसको निकला, और वो इमोशन से उसने वो रास्ता चूज़ किया कि मेरे को ऐसी लड़की पिक करने की है, ऐसा चूज़ करने का है, और कोई ज्ञाति जाति का भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हिंदू के लिए किया है। आप उसमें निकाह भी है, क्रिश्चियन का भी शादी है उसमें, और खाली गुजरात और भावनगर लिमिट नहीं है। लास्ट टाइम जहाँ तक मेरे को मालूम है, नहीं तो 7 to 8 स्टेट से लड़कियाँ आई थी, और 552 फादरलेस गर्ल्स का शादी भावनगर में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के प्रेजेंस में हम लोगों ने शादी करवाई। और शादी ऐसे नहीं होती है कि खाली फेरे लग गए, शादी एक बड़ा मतलब जो गर्ल्स के लाइफ में एक सपना होता है कि भाई ये तरह की शादी होनी चाहिए, मतलब एक रजवाड़ी शादी, हाई लेवल की शादी, वो लेवल की शादी हम लोगों ने भावनगर में अरेंज की थी। और खाली शादी के लिए खाली हम लोगों ने खाना नहीं रखा था, जो लड़की को शादी के बाद जो चीज़ दी जाती है, ऐसा 117 चीज़ हम लोगों ने शादी लड़की को जब विदाई के टाइम, उसको करियावर हम लोग गुजराती में बोलते हैं, वो करियावर के साथ विदा किया था। और उसके पास राइट प्लेस है तो उसका घर संसार कल से चालू होवे, वो तैयारी करके भेजा था। तो रही बात, सुरेश ने मोर देन 2020 शादी करवा चुका है। क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लखानी फैमिली। ऐसा शादी, क्या बात है। और उसका मकसद 2024 या 2025 में अभी वो 1100 का संकल्प किया। क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या बात। तो अगर 24 में होवे या 25 में होवे, मैं तो एडवांस में सब लोगों को इनविटेशन दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। और वो टाइम पे
पूरी इंडस्ट्री उधर प्रेजेंट रहेगी तो हम लोग को इतना खुशी होगा, जो कर रहे हैं उससे से एक आदमी को ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, तो राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा कुछ छोटा सा योगदान क्या बात है, माँ भारती को मिल जाएगा, क्या बात। ऐसा हम लोग गर्व महसूस करेंगे। क्या बात है, दिनेश भाई के लिए जोरदार तालियां हो। एक हम समझ सकते हैं कि जो देश प्रेम है उसकी परिभाषा आपने परिपूर्ण व्यक्तित्व में आपने रखी कि देश प्रेम कैसे होता है। और आपकी एक बात मुझे बहुत सुंदर लगी कि आप करने में विश्वास रखते, बोलने में नहीं। और आप जब बोलते तो चीर फाड़ के बोलते, आपकी आवाज़ में वो बुलंदी होती है। दिनेश भाई, इस चीज़ के लिए हमारी पूरी इंडस्ट्री के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और तालियों से दिनेश भाई को स्वागत करना चाहिए, बिकॉज ये सुरेश भाई और दिनेश भाई लखानी परिवार ने ये बहुत अच्छा बीड़ा हमारे देश के लिए उठाया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे आप आगे बढ़ते रहें, और आपने पूरी इंडस्ट्री को इनविटेशन दिया है, ज़रूर हम आएंगे और इसे देखेंगे। अब दिनेश भाई, हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि 3 चीज़ें, क्योंकि आप जनरेशन गैप तो समझ ही रहे हैं, आप जब पैदा हुए बड़े हुए तो कैसे जनरेशन थी, कैसे हम जॉइंट फैमिली में साथ चलते थे, भाभी भाई माँ मासी सब साथ में होती थी, और एक परिवार, संयुक्त परिवार होता था। अब जनरेशन बदल गई है। क्या 3 नसीहत आप आज की जनरेशन को देना चाहते हो, क्योंकि आप देश विदेश पूरा भारत घूमते हो और आप इतनी चीज़ें देखते हो, कमियां देखते हो, खूबियां देखते हो, ऐसी क्या 3 चीज़ें आज आप युवाओं को देना चाहते हो या नसीहत बताना चाहते हो, या आपकी तरफ से क्या 3 चीज़ें आप बोलना चाहते हो दिनेश भाई? चेतन भाई, आज के यूथ जो हमारा फ्यूचर है, मैं यूथ को इतना ही बोलना चाहता हूं और अपनी लैंग्वेज में बोलूंगा कि फ्रेंडशिप मत करो, मैरिज कर लो। क्या बात, मीन्स फ्रेंडशिप तो करनी ही चाहिए, ये मेरा व्यंग था, लेकिन जो काम करने जा रहे हो उसके साथ लगाओ, लगन, डेडिकेशन उसके साथ करो, तो आपको 100% सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। क्या बात है। क्योंकि यूथ को एक कंपल्सन आ जाता है लाइफ में कि मेरा फैमिली का बिजनेस है तो फैमिली में जाना जरूरी है। मैं उधर आपको रोक रहा हूँ कि ऐसा मत करो। हाँ, आपको इंटरेस्ट है, आपको ऐसा है कि मेरा जो काम मेरा फैमिली कर रहा है उससे मैं आगे लेके, और मेरा इंटरेस्ट है, तो आप 100% करो। मतलब जनरेशन से जो करते आए हो वो करना जरूरी है, ऐसा अभी मैं आपको भी ना बोल रहा हूँ, ये बिलीव मत समझो और करो भी मत। मतलब जो भी करो उसको डेडिकेशन से, प्यार से, हार्ड वर्किंग से करो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। सेकेंड थिंग, हमेशा सपना देखो, लेकिन बहुत बड़ा देखो। सपना बड़ा देखने में कोई एतराज नहीं है, और आपका सपना बड़ा होगा तो आप उसके पीछे हमेशा 365 डेज 24 आवर्स आपका माइंड वो हिसाब से वर्किंग रहेगा, और सफलता की ओर आपको 100% लेके जाएंगे। और तीसरा मैं बोल रहा हूँ, जो कर रहे हो वो आपकी पॉलिसी, विजन और नेशन को हमेशा आगे रख के करो कि मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ एथिकली और राइट होना चाहिए, और नेशन को मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, नेशन का नाम कैसे आगे रोशन कर सकता हूँ, वो 3 चीज़ आप ध्यान में रखे करेंगे तो आपकी जो कीर्तिमान रचने वाला है, और हमेशा रिकॉर्ड बनता है तो टूटने के लिए बनता है, तो पीछे किसी ने रिकॉर्ड बनाया है वो तोड़ना आपका सपना होना चाहिए, और वो सपना आप 100% जब ये 3 चीज़ कंटिन्यू आपके माइंड में चलेगी, आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको 100% सफल होना ही है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है कि आपका जो जीवन का अनुभव है दिनेश भाई, ये इतना बेहतरीन रहा है कि आपकी हर चीज़ तो नेशन के साथ तो जुड़ी हुई है, और आपने सही कहा कि
एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें लगाव नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, उत्साह नहीं है, तो हम वो चीज़ नहीं पा सकते हैं। दिनेश भाई, आपने लाइफ में जो अचीव करना था, मुझे जब तक समझ है, आज आप पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉपेस्ट कट एंड पॉलिश डायमंड मैन्युफैक्चरर हैं। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर दिनेश लखानी? कहाँ आप नेक्स्ट अपने आप को देखना चाहते हैं? क्या विजन है आपका? हाँ, ये भी पता है कि आप हमें नहीं बताते बिकॉज आप करते हैं, लेकिन अब हम सुनना चाहते हैं और हम प्रभु से भी प्रार्थना करेंगे कि आप जो बोलोगे वो आपकी हर बात मानी जाएगी। उसमें दिनेश लखानी नहीं है, लखानी फैमिली है और किरण है। क्या बात है? किरण जेम्स है और लखानी फैमिली है, तो ही दिनेश लखानी है। क्या तो बात है? उसकी अगर मैं बात करूं, किरण को जो हाइट पे पूरी टीम ने, पूरी फैमिली ने जो पहुंचाई है, अभी हो गया एक डायमंड कटिंग वर्ल्ड बिगेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स, इनोवेटर्स, टैक्स पेयर, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ हो चुका। अभी नेशन को एक किरण फैमिली और लखानी फैमिली की ओर से एक देश में से ऐसा एक ब्रांड निकले जो देश का नाम इंडियन मेक इट इंडिया के अंदर रोशन होवे, ये मेरा गोल है। क्या बात है, तालियां हो जाए। कहीं ना कहीं ऊंचाई पहुंचने के बाद देश प्रेम आपके अंदर जगी जाता है, और हम किसी और को पूछते तो वो बोलेगा मुझे और बिलियन कंपनी बनानी है, डॉलर कंपनी बनानी है, लेकिन आपको मेक इन इंडिया के देश के एक प्रमुख चेहरे में से एक अपनी कंपनी को रखना है। दिनेश भाई, एक व्यक्तित्व क्वेश्चन है। आपकी मुझे लगता है, जब तक क्या बताऊं, बहुत सारी बातें आपको याद करके भूल जाता हूं मैं। आपकी वाणी में सरस्वती विराजमान है। कभी प्लान किया है दिनेश भाई आपको पॉलिटिक्स में जाना है? मैंने आज तक एक सेकंड तक कोई मेरा प्लान है नहीं। मैं इतना जानता हूं कि मैं अच्छा आदमी रहूंगा तो देश को क्या दे सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है, देश के लिए कुछ करना है तो पॉलिटिक्स में जाना जरूरी है। नो डाउट, एक सबका अलग प्रोफाइल रहता है, एक बेटर वे से हो सकता है। दिनेश भाई, अगर कभी मौका मिला, ठीक है आप नहीं जाना चाहते, ऐसा व्यक्तित्व क्वेश्चन है, प्रभु ना चाहे कभी अगर मौका मिला तो उसको आप ग्रहण करना चाहेंगे? अभी स्ट्रेट बोलूं तो कोई ऐसा मेरा प्लान है नहीं, लेकिन हमेशा समय आपको चेंज करवाता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते कि समय चेंज हो जाए। समय अगर आया और मेरी जरूरत रही तो मैं वो टाइम में सोचूंगा। अभी मेरा कोई प्लान है नहीं। ठीक है, थैंक यू। दिनेश भाई, अब चलते हैं हीरे के बारे में। जैसे आपको पता है कि बहुत बुरे, ज़्यादा बुरे तो नहीं, थोड़े बुरे वक्त से अपनी डायमंड इंडस्ट्री अभी गुजर रही है। आपकी क्या सोच है उसके बारे में, और फ्यूचर क्या है डायमंड्स का शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में, और डायमंड इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली आपका मैसेज क्या है? बिकॉज जब भी हम डायमंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कोई बोल रहा है भाव घट गया है, कोई कुछ बोल रहा है, बहुत हम बड़े अश्मशश की, और आपसे कुछ छुपा हुआ है नहीं। लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए आप डायमंड इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं, और एक मैसेज आप डायमंड इंडस्ट्री को क्या देखना चाहते हैं? ये मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट आपने अभी चर्चा पे लेके आए हो, उसके लिए मेरे को मिनिमम 2 to 3 आवर्स चाहिए ये सब्जेक्ट के बारे में। शॉर्ट में आपको शॉर्ट में बोलूं तो मैं नेचुरल से प्यार करता हूं और नेचुरल डायमंड मेरे ब्लड में है। क्या बात, क्या तो बात। मैं सबको बोलना चाहता हूं, इंडस्ट्री वाले को, जो प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो वो प्रोडक्ट के साथ मैरिज कर लो, फ्रेंडशिप मत रखो। आज की तारीख में मैं देखा जाए तो मैं गुड्स या डायमंड नहीं बेच रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस बेच रहा हूं। क्या बात, क्या बात। ये चीज पूरी इंडस्ट्री को समझनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट है, आपका बच्चे जो भी है
ऐसा नहीं होता कि सबका बच्चा अदानी बन जाए, अंबानी बन जाए, लेकिन आपको आपके बच्चे से प्यार करना चाहिए, आपका बच्चे को गाइड करना चाहिए और प्रॉपर वे से उसको लर्न करवाना चाहिए। तो इधर मेरे को एक ही चीज़ आपको बोलने की है, कभी भी कुछ भी नेगेटिविटी आ जावे या लोग जितना भी बोले कि इंडस्ट्री नहीं चल रही है, ऐसा होने वाला है, कभी भी इंडस्ट्री मरती नहीं है, हम मर जाते हैं। क्या बात है। इसलिए सोच लेना, कभी भी इंडस्ट्री की बुराई मत करना। इंडस्ट्री है तो हम है तो राष्ट्र है, क्या बात। और राष्ट्र के लिए अगर आप भला चाहते हो तो इंडस्ट्री की बुराई मत करो। और आपकी रोजी रोटी है, आपकी फैमिली चलती है, इतना देश चलता है, देश को इतना इनकम होता है, देश का इनकम होता है तो देश का विकास होता है। अगर आपको देश का विकास नहीं करवाने का है तो इंडस्ट्री का बुरा बोलना। बाकी बात रही अभी सिचुएशन की, लाइफ में इससे भी वह सिचुएशन आएगी भी, चली भी जाएगी, लेकिन मैंने जैसे आगे जिक्र किया, लाइफ और बिजनेस हमेशा स्ट्रेट नहीं चलता है, और स्ट्रेट चलता है उसको लाइफ और बिजनेस नहीं बोलता है। उसके बाद अगर ये जो टाइम चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन शॉर्ट टाइम में वो भी पास होने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी मैसेज है, और नेगेटिविटी आप चल रहे हो वो माइंड से पहले निकाल दो। थैंक यू दिनेश भाई। लेकिन दिनेश भाई, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में हीरे का क्या फ्यूचर देख रहे हो? बिकॉज ये तो ठीक है, आपने कहा कि नेचुरल ब्लड तो आपके नेचुरल डायमंड तो आपके ब्लड में, नो डाउट, लेकिन ये शॉर्ट, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि काफ़ी हमारे हीरे जगत से लोग हैं और वो पर्सनली तो आपसे मिलके नहीं पूछ सकते, तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में डायमंड को आप क्या देख रहे हो और फ्यूचर क्या है हमारे नेचुरल डायमंड्स का? डायमंड इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डायमंड इज़ फॉर एवर। क्या बात है। तो मैंने जैसे बोला कि मेरे ब्लड में डायमंड है, मेरे ब्लड में नेचुरल डायमंड है, तो मैं तो इतना प्यार करता ही हूँ। आपको भी बोल रहा हूँ, मैं प्यार क्यों करता हूँ। प्यार आदमी किसको करते? जिसको चाहते, जिसके ऊपर लगाव है, उसको मैं प्यार कर रहा हूँ। तो आप इतना समझ जाओ कि इसका जो चमक है, वो चमक की वजह आप हो। अगर आप ही नमक और नरम हो जाएंगे तो इसकी चमक चली जाएगी और आप चले जाएंगे। लेकिन डायमंड, मैंने जैसे बोला, इसमें डायमंड की चमक फॉर एवर रहने वाली है, क्योंकि ये डायमंड आप एक कोई थिंक या कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। डायमंड को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसके ऊपर है। डायमंड यानी रेयर है, डायमंड यानी लव है, डायमंड यानी लग्जरी है, डायमंड यानी इमोशन है, डायमंड यानी हेरिटेंस है, डायमंड यानी एसेट है। तो आप डायमंड को क्या नहीं बता सकते हो। और कोई भी चीज़ एक कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डायमंड, वो डायमंड मार्केट और नेचुरल डायमंड कभी गिरने वाला नहीं है। हमेशा उसकी चमक, जब तक चांद में जब स्टार्स की चमक रहेगी, वहाँ तक डायमंड की चमक वही रहने वाली है। दिनेश भाई, आपकी आंखों के जोर ने बता दिया कि आपको सबसे ज़्यादा हीरे से प्यार है, लेकिन मेरा सवाल वहीं खड़ा रह गया कि फ्यूचर अच्छा है, आपने बताया, प्राइजेस का क्या लग रहा है? क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि सब बता रहे हैं कि प्राइजेस गिर गए हैं, हीरे के बहुत सस्ते हो गए हैं, उसका फ्यूचर नहीं है। तो मैं आपसे एक लाइन में चाहूँगा, बिकॉज समय की कटौती है, तो एक लाइन में चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म में हीरा प्राइजेस का क्या लग रहा है आपको, और आप जो रिटेलर्स माल खरीद रहे हैं उनको क्या आप नसीहत देना चाहोगे? अभी हम लोगों ने काफ़ी टाइम से, मैं 2-3 दिन से मैसेज देने की ट्राई कर रहा हूँ कि डायमंड का प्राइस जो सर्टन एरिया है, यानी मैं अगर दो उसका पार्ट्स में विभाजन करूँ तो एक सॉलिटर्स डायमंड और एक नॉन सॉलिटर यानी स्मॉल साइज डायमंड। स्मॉल साइजेस डायमंड जो है इंडस्ट्री में आज इंडिया में मोस्टली मोर देन 80-85% यूज जो होता है, और वो क्वालिटी, वो कलर और साइजेस, आज आपको राइट मार्केट में वो माल नहीं है। प्राइस कम करने की तो बात ही अलग है। पर्टिकुलर सेगमेंट में जो चाइना यूज़ कर रहा था जो सॉलिटर्स, उसमें 2-5% गिरावट लास्ट वन मंथ में हमने देखी गई है। लेकिन वो सर्टन डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम है।
आज आप इंडस्ट्री जो हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कम कर रही है, जो डिमांड एंड सप्लाई को मैच करने की ट्राई कर रही है, वो सर्टन टाइम के लिए भी जो भी पॉइंटर्स गुड्स या सर्टिफाइड गुड्स आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिलता होगा, वो सर्टन टाइम के लिए ही है। वो प्राइस में, क्योंकि एक कोई भी चीज़ का एक पैरामीटर डिफाइन होता है कि बॉटम लेवल कौन सा होना चाहिए। तो ये जो सर्टिफाइड स्टोन का आज जो प्राइस है बॉटम है, और मैं तो इतना उम्मीद कर रहा हूँ एज ए रिटेलर आपसे कि आप राइट अवेयरनेस कंज्यूमर को दो, और राइट प्राइस में बॉटम लेवल से अगर आप राइट इंट्रोड्यूस करेंगे तो गोल्ड की तरह जो आज लाइन लगी हुई है ऐसी डायमंड में भी लग जाएगी। डायमंड का प्राइस फर्दर डाउन होने वाला नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई जो आज अनमैच है पर्टिकुलर साइज में, वो भी शॉर्ट टाइम में वो मैच होने वाली है। और स्मॉल साइजेस के लिए लोग कुछ भी बोलने दो, राइट माल नहीं है और प्राइस गिरा भी नहीं है और गिरने वाला भी नहीं है। बस यही आपसे मैं सुनना चाहता। तालियां हो जाए दिनेश भाई के लिए। थैंक यू। दिनेश भाई पहुंचते ज़रूर है लेकिन बहुत कड़क पहुंचते हैं। दिनेश भाई आखिरी क्वेश्चन के साथ ख़त्म करूंगा बिकॉज टाइम की भी सीमा है और हमें दूसरे प्रोग्राम भी हैं यहाँ पे। आज ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आईपीओ बहुत अच्छे सक्सेस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री नेगेटिव में थी, गवर्नमेंट भी उसको एक अच्छे नज़र से देख रही है। और जब हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री का ओवर आईपीओ जब होता है तो उसका ओवर सब्सक्राइब होता है, तो हमें पता चलता है कि इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव है। क्या हम किरण जेम्स को भी फ्यूचर में आईपीओ में देख सकते हैं, या कोई विजन या प्लान है? अभी एज ए किरण जेम्स का कोई प्लान आईपीओ में या पब्लिक में जाना नहीं है, लेकिन मैं सब रिटेलर को बोलता हूँ मेरे को छोड़ दो, सबको जाना चाहिए। क्योंकि मैं रिटेल में 1 to 1 में नहीं हूँ, मैं वर्ल्ड में B2B बिजनेस में नंबर 1 हूँ। लेकिन इंडिया का और एज ए नेशन और जो एक भारतीय सिटीजन मेरे को ऐसा प्राउड फील करना है कि टिफ़नी जैसी ब्रांड एक इंडिया में से भी वर्ल्ड में जावे और इंडिया उसका ओनरशिप लेवे। इसके लिए जो भी ज़रूरी है, मार्केटिंग, कॉन्फिडेंस, आईपीओ, वो सब कुछ रिटेलर को करना चाहिए। और B2B में हम लोग को ज़रूरत है भी नहीं, और हम लोग आपके बैक इंजन है, फ्रंट इंजन आप लोग हो, तो आपको जो भी सपोर्ट चाहिए एज ए B2B लूज डायमंड मैन्युफैक्चर, हम लोग रिटेलर को पूरे चेन को हम लोग देने के लिए 365 डेज रेडी है। Thank you, Dinesh bhai. A big round of applause for Dinesh bhai. We end this session now. It have been great talking to Dinesh bhai. I would request everyone to have a standing ovation for Dinesh Lakhani. We are, as we all aware that Dinesh bhai have given a precious time and we are very happy. Today now we are going to release one, everyone to be seated for a minute. We are going to have a first diamond conference in India with the support of Dinesh bhai because he's a hardcore natural diamond man. I would request Govindan sir, Manisha Gupta ji and Jaya aunty to please come on stage
to have a brochure release of Diamond first conference in our India. A big round of applause. Before closing, I would like to thank each and everyone. I hope everyone enjoyed this session, having a great time with everyone. I would thank Jewel Buzz, our live streaming partner, and all the media houses across country who have made this beautiful occasion a memorable moment. Thank you so much for all coming. 1 second. From CA Publication, Jewelry News India, we are releasing a special magazine for Chetan Mehta. Congratulations to Chetan Mehta, sir. Please. Thank you so much, Dinesh bhai. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. A big round of applause for Dinesh Lakhani. Thank you. Thank you all for your great time. Love you all. Jai Hind. Thank you, ladies and gentlemen.